Good morning, dear students. My name is Shudhi Sukla and I used to teach the subject electronic devices. Electronic devices. Dear students, hope you are well now these days. So let's start our discussion. During our previous discussion, we have started the topic Schottky barrier diode, which was also called a hot carrier diode. And the symbol for that Schottky diode was basically जो हम normal diode के लिए single plate vertical line use करते थे, that vertical line is basically replaced with S, and simply we draw the Schottky barrier diode, the symbol for Schottky barrier diode as in this way. Both of the way is correct. Either you draw in this way or simply we can draw in this form. In few of the books ये symbol use किया जाता है, in few of the books ये symbol use करता है. S the actual is this one, लेकिन both of them is correct. Need not to be confused with the symbol used in the first case and the symbol used in the second case. This is what both the symbols is for Schottky barrier diode. तो मैंने आपको बताया कि why we are just using Schottky barrier diode. The reason is कि जब हम use करते हैं normal diode और उस normal diode को जब हम high frequency signals पे operate करते हैं, there is the problem. क्योंकि we all know कि that diode can be used as a rectifier to convert the AC signals into DC signal. So during rectification, that problem occurs when that diode is being operated at the high frequency signal. तो इसी problem को remove करने के लिए we have this Schottky barrier diode. So let me draw and explain this with the help of circuit diagram. So this was the basically symbol which is used for the Schottky barrier diode. So here I am just giving a AC signal as the input. This is what, dear students, nothing but the rectifier circuit. जहाँ पे in the first case we are using a normal diode. मैं एक normal diode use करता हूँ. And after it all, we will observe the voltage across this resistance is V0, and this is what V in, and I am just giving the input here. This is what the AC signal. हमने कुछ input apply किया, V as a input and 5 volt 50 hertz. The frequency for this signal to be 50 hertz. So if we observe here, for this case, when we are giving high frequency signal, the output in this case is something like, let me draw the figure first. After it all, I will give the explanation. This is with respect to T. Dear students, in the Schottky barrier diode case, see, हमने बताया कि जो
ड्रॉबैक्स थी जब हम डायोड्स को यूज कर रहे थे, लाइक द रेक्टिफायर, फॉर द रेक्टिफायर सर्किट व्हाट हैपेंड कि हमने इनपुट दिया 5 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, इट्स अबाउट 50 हर्ट्ज, और जब हम इनपुट देते हैं इस डायोड के अक्रॉस, द आउटपुट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट इज द करेक्ट आउटपुट फॉर दिस स्मॉल सिग्नल 50 हर्ट्ज। ये हमारे पास डीसी आउटपुट आ जाता है, because the function of rectifier is to convert the AC signal into rectifying DC signal. Means this is the circuit for rectifier, जहां पे हम normal PN junction diode use कर रहे हैं. But see what is happening here. कि here again I am using 5 volt, but frequency I have increased, that is 1 megahertz. हमने यहाँ frequency यूज किया हाई फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। आप देख सकते हैं रेटिंग के अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग 50 हर्ट्ज, और यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज। तो हमने फ्रीक्वेंसी पे इंक्रीज किया, तो अगर 50 हर्ट्ज 5 वोल्ट पे आउटपुट डीसी आ रहा था, तो 5 वोल्ट 1 मेगाहर्ट्ज पे भी जो आउटपुट आना चाहिए दैट शुड बी लाइक दिस वे। बट स्टिल व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे अनवांटेड सिग्नल्स आ जा रहे हैं, and that is what? Noise or distortion. Distortion. Noise or the disturbances. हमारा आउटपुट जो होना चाहिए था that is this one. लेकिन यहां पे निगेटिव पीक्स के साथ, निगेटिव, जब ये निगेटिव होता है जबकि आपका डायोड को ऑपरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में, इन द फॉरवर्ड बायसिंग the diode should give output. In the forward biasing, the diode should give output. In the reverse biasing, the diode will work as an insulator and there will be no current. जैसे यहाँ पे, but in this case, when the frequency signal was too much, इस केस में निगेटिव पीक्स पे भी, रिवर्स बायस पे भी आपको यहाँ पे नॉइज मिल रहा है. So this becomes the drawback for normal PN junction diode. So let me take another case for Schottky barrier diode. What we are observing here, same, I am going to replace the diode with Schottky barrier diode. नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को मैं रिप्लेस करता हूं विद दैट ऑफ शॉटकी बैरियर डायोड से, एंड अगेन आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग सेम इनपुट, that is 5 volt and 50 hertz. This is V. The output is, there is no issue regarding the output whose frequency is small, but there was the case कि जब हम frequency increase करते हैं, तो let me draw that case also कि जहां पे हमारी frequency was high, that is 5 volt oblique 1 megahertz. In that case, dear students, if you are using the Schottky barrier diode, you have output like in this way. This is what V, this is T. Dear students, नॉर्मल डायोड का जब हम केस देखते हैं, उस नॉर्मल डायोड के केस में जब फ्रीक्वेंसी हम हाई करते हैं तो यहाँ पे नॉइज या डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। ये पीक्स नहीं आनी चाहिए क्योंकि रेक्टिफायर का काम है एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना। सो यहाँ पे ये डीसी जो सिग्नल आना चाहिए उसके साथ यहाँ पे नॉइज क्रिएट हो जा रहा है। दिस बिकम्स द ड्रॉबैक फॉर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, और उसी को रिप्लेस करके हम यूज करते हैं Schottky barrier diode. And what we are observing,
कि लो सिग्नल्स पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जिस तरह आउटपुट एक्यूरेट आउटपुट दे रहा था उसी तरह सेम हमारा शॉर्टकी बैरियर डायोड भी देता है, बट स्टिल इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज, वी ऑब्जर्व कि हमारा जो आउटपुट आता है दैट इज ऑफ दिस टाइप, और ये एक्सेप्टेबल आउटपुट है, ना कि दिस वन। सो सर्किट डायग्राम से हमें क्लियर हो गया कि which one is best to operate at the high power signal. Let me draw the VI characteristic for both of the cases. For Schottky barrier diode as well as for PN junction diode. We all know in the forward bias, the normal PN junction diode is, this is the I and this is what V, this is I and this is what V. And the reverse characteristic is like in this way. और अगर हम शॉर्टकी बैरियर डायोड के देखें तो हमारा जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है स्लाइड in this way. This is what? This is basically the knee voltage, the cut-in voltage. For normal PN junction diode, we found this voltage to be 0.7 volt or 0.3 volt. But dear students, in this case, we observed कि जो आपका cut-in voltage होता है for the Schottky diode, that is basically 0.2 to 0.25. मीन्स जो बैरियर पोटेंशियल होता है, जो मिनिमम वोल्टेज हमें अप्लाई करना होता है फॉर द डायोड टू वर्क एज ए कंडक्टर, वो 0.7 या 0.3 डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, वो ये वैल्यू होती है। लेकिन वही अगर हम शॉर्टकी बैरियर डायोड का केस देखें तो इन दैट केस वी फाउंड दैट वैल्यू टू बी 0.2 to 0.25। और अगर हम रिवर्स बायस का केस देखें डियर स्टूडेंट्स, तो वी फाउंड कि रिवर्स बायस केस में भी जो आपकी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, दैट इज मच हाई, और इन दिस केस दैट इज फाउंड टू बी लो। तो दिस becomes the drawback which we will discuss in the difference between the PN junction and Schottky barrier diode. So dear students, I hope कि जो सर्किटरी मैंने आपको बताई यहाँ पे with the graph you come to understand. So let us discuss the difference between the PN junction diode and Schottky barrier diode. अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस की बात करें तो जो नॉर्मल डायोड है दैट फेल्स, एंड द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ दैट डायोड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू थ्रू दिस ग्राफ। जो सर्किट बनाई, जो ग्राफ बनाया मैंने, कि अगर नी वोल्टेज की भी अगर हम बात करें तो हाउ द नी वोल्टेज वेरीज फॉर द Schottky barrier diode and for the PN junction. So let us discuss about the differences for the normal PN junction diode and Schottky barrier diode. So this is what PN junction. We will discuss the advantages and disadvantages, and this is what the Schottky diode. So first one is high forward voltage, and here low forward voltage. Here high reverse recovery time, and this is case low reverse recovery time. We will, let me write first of all, after it all we will start our discussion.
high power dissipation and low power dissipation. We all know E is equals to P into T, or simply we can write V into Y into T. And here if I am putting 0.7 into V into 60, we have the value E is equals to 42 joule. And same here E is equals to V into Y into T. That is what? 0.2 into 1 into 60. We have the value 12 joule. So let me write the another one. Lower switching speed ultra high switching speed used for high power low frequency signal used for high frequency signals reverse current I reverse is equals to 1 to 2 microampere be used as peak detector circuit. Reverse current or Schottky diode is what? 70 to 200 microamperes, or cannot be used in peak detector circuits. Dear students, this is what the few main difference between the Schottky diode and the PN junction diode. So let's discuss one by one. यहां मैंने लिखा हाई फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर पीएन जंक्शन एंड लो फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर पीएन जंक्शन. दैट मीन्स जो ग्राफ मैंने बनाया था, बेसिकली जब आप नॉर्मल डायोड का देखते हैं तो उसके लिए हाई फॉरवर्ड वोल्टेज होता है. दैट मीन्स जो जंक्शंस के बीच जो बैरियर पोटेंशियल है दैट वाज क्वाइट हाई, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि क्या फॉरवर्ड वोल्टेज है. मतलब उतना मिनिमम वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे आफ्टर इट ऑल दैट डिवाइस विल अलाउ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टू फ्लो. लेकिन सेकंड केस में जब हम बोलते हैं कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है दैट इज लो, दैट मींस कि वहां पे कोई बैरियर पोटेंशियल होता ही नहीं है. द चार्ज कैरियर्स आर अलाउड टू मूव इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, और उसकी वजह से जो फॉरवर्ड की जो वैल्यू होती है वोल्टेज की दैट इज फाउंड टू बी लो, दैट इज 0.2 टू 0.25. लेकिन वही फॉरवर्ड वोल्टेज के केस में, हाई पीएन जंक्शन केस में जो हाई फॉरवर्ड वोल्टेज लेते हैं उसकी वैल्यू होती है 0.7. सेकेंड, हाई रिवर्स रिकवरी टाइम, एंड इन द शॉटकी डायोड केस दैट टाइम इज लो.
दैट्स व्हाई वी से लो रिवर्स रिकवरी टाइम। दैट मीन्स मैंने आपको बताया कि रिवर्स रिकवरी टाइम का क्या मतलब है। जैसे कोई डायोड होता है और उसको हम उसकी बैटरी से उसकी कनेक्टिविटी करते हैं, तो अगर वो डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो नो डाउट इट विल वर्क एज ए कंडक्टर, एंड दैट कंडक्टर मीन्स दैट डिवाइस इज अलाउइंग the charge carriers to move, the majority charge carriers to move from one direction to the another direction, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। तो वो जिस केस में वो करंट फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड दैट डायोड इज वर्किंग इन द ऑन स्टेट। और जिस केस में रिवर्स बायस के केस में जब डायोड नहीं वर्क करता एज ए कंडक्टर, तो उस स्टेट को बोलते हैं ऑफ स्टेट। तो वंस अगर हम बहुत अचानक से फॉरवर्ड बायस को रिवर्स बायस में चेंज करें, मींस ऑन स्टेट में है कि फॉरवर्ड बायस में है, और मैं अचानक से उसको तुरंत रिवर्स बायस में करूं, दैट मींस अब वो फॉरवर्ड से रिवर्स में जैसे होगा तो वहां पे जो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था वो उसको इंसुलेटर की तरह बिहेव करना चाहिए। तो जो टाइम होता है चार्ज कैरियर्स जब डिप्लीशन रीजन में आके डिप्लीट होते हैं और वापस उस रीजन से अपने रीजन में जाने की कोशिश करते हैं इन द रिवर्स बायस, इन दैट केस जो डिले होता है दैट इज व्हाट रिवर्स रिकवरी टाइम। तो अगर हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात करें स्टूडेंट्स, तो वहां पे हाई रिवर्स रिकवरी टाइम होती है, लेकिन अगर हम शॉर्टकी बैरियर डायोड की बात करें तो वो रिवर्स रिकवरी टाइम लो होती है। और यही रीजन बनता है कि जो स्विचिंग होती है, स्विचिंग स्पीड जो होती है दैट इज क्वाइट हाई इन द शॉर्टकी डायोड। ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट और ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट बहुत तेजी से स्विच करता है, किसके केस में? शॉर्टकी डायोड के केस में। बट दैट प्रॉब्लम ऑकर्स इन द पीएन जंक्शन डायोड। द थर्ड वन इज हाई पावर डेसिपेशन। अगर हम पीएन जंक्शन की बात करें तो वहां पावर डिसिपेशन जो होता है दैट इज क्वाइट हाई, और शॉर्टकी डायोड के केस में जो पावर डेसिपेशन होता है दैट इज क्वाइट लो। वी ऑल नो कि E is equals to P into T, that means energy is equals to power into time, because power is equals to energy by time. So by that relationship we can write E is equals to P into T. So P is equals to V into I, we all know. तो वोल्टेज की अगर हम बात करें और यहाँ पे हाई फॉरवर्ड वोल्टेज है तो मैंने वैल्यू पुट की 0.7, और जो करंट है उसकी वैल्यू मैं अगर कंसीडर करता हूँ 1 एम्पियर, और जो टाइम लेता हूँ दैट इज आई एम टेकिंग 60 मिनट्स। तो उस केस में हम देखते हैं कि जो एनर्जी हमारे पास आती है दैट कैलकुलेटेड वैल्यू इज 42 जूल, और 42 जूल ये आ रही है वैल्यू इन द केस ऑफ हाई फॉरवर्ड वोल्टेज दैट इज ऑफ पीएन जंक्शन। शॉर्टकी डायोड के केस में जो वोल्टेज है दैट इज लो फॉरवर्ड वोल्टेज, और उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 0.2, और ये वैल्यू सेम करंट की भी और टाइम की भी। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द एनर्जी फॉर दिस शॉर्टकी डायोड्स वी हैव E is equals to 12 जूल। सो इफ यू कंपेयर दीज टू वैल्यूज, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करिए तो यू फाउंड कि जो एनर्जी इसके पीएन जंक्शन के लिए दैट इज 42 जूल, और that increase in the energy cause lot of dissipation of heat। इसकी वजह से यहां पे हीट डिसिपेट ज्यादा होती है पीएन जंक्शन डायोड के केस में, एंड that heat is not much more generated in the case of Schottky barrier diode। That's why यहां पे कहते हैं लो पावर डेसिपेशन, और यहां इस केस में कहते हैं हाई पावर डेसिपेशन। Next is lower switching speed. We all know that if the reverse recovery time is high, the switching speed will be low automatically. If the reverse recovery time is low, the switching speed will be high. And due to that, low switching speed we use for high power low frequency signals. That becomes the limitation. और अगर हम बात करें शॉर्टकी बैरियर डायोड की, तो वी कैन से दिस कैन बी यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, और यही ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से हमने नॉर्मल डायोड को यूज किया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल डायोड वी आर यूजिंग शॉर्टकी डायोड फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। नेक्स्ट इज रिवर्स करंट। आई रिवर्स की जो वैल्यू होती है इन द केस ऑफ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड दैट इज 1 to 2 microamperes, and in the case of Schottky diode this value is found to be 70 to 200 microamperes,
and this is the large value, and that becomes the drawback for this Schottky barrier diode. और इसी ड्रॉबैक की वजह से we can't use this in a peak detecting circuits. हम peak detecting circuits में we never use the Schottky diode. और रिवर्स करंट की वैल्यू कम होने की वजह से, वेरी स्मॉल होने की वजह से हम इसको पीक डिटेक्टर सर्किट्स में यूज करते हैं पीएन जंक्शन पर. तो वी फाउंड कि अमंग दीज 4 to 5 points there is 1 to 2 drawback of this Schottky diode, but still the large number of advantages are. अगर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस हमें देखना हो, ऐसा नहीं है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पे अगर हमें ऑपरेट करना हो तो दिस Schottky diode will fail. नो, क्योंकि अभी हमने सर्किट डायग्राम में देखा कि लो सिग्नल्स के लिए भी आउटपुट हमारे एक्यूरेट था यूजिंग दिस Schottky डायोड, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए भी आउटपुट एक्यूरेट था. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, तो दैट इज फाउंड टू बी ग्रेटर इन द केस ऑफ PN जंक्शन डायोड. दैट वैल्यू इज फाउंड टू बी ग्रेटर. हाई वैल्यू हमें मिलती है, greater value, peak inverse voltage. But in the case of Schottky diode, we found the PIV value to be lower or lesser. That means that also become the drawback for Schottky diode. क्योंकि peak inverse voltage that means कि reverse bias में वो maximum voltage, after it all the device is being destroyed या डिवाइस इज बर्न्ड आउट. तो पीक इनवर्स वोल्टेज बताता है कि वो मैक्सिमम वोल्टेज जिसके बाद आपका डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉय हो या डिस्ट्रक्ट हो. तो वो वैल्यू, पीक इनवर्स वैल्यू इज ग्रेटर फॉर दिस पीएन जंक्शन डायोड, इज फाउंड टू बी ग्रेटर, जो कि होनी चाहिए. ग्रेटर वैल्यू ऑफ दिस PIV इज एक्सेप्टेबल एंड इट एज्यूम टू बी गुड. लेकिन Schottky डायोड के केस में दिस वैल्यू इज फाउंड टू बी lesser, and due to which हमने जो ग्राफ बनाया था डियर स्टूडेंट्स रिवर्स बायस का केस में, उसमें आपको ये क्लियर बताया था मैंने कि दिस वाज द केस फॉर Schottky डायोड एंड दिस वाज द केस फॉर नॉर्मल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड. पीक इनवर्स वोल्टेज इसका हाई होता है, और इन द केस ऑफ Schottky डायोड वी फाउंड इट टू बी lesser. So dear students, this was all for the Schottky diode. I hope you come to understand कि इसका अगर एप्लीकेशन हमें डिवाइस का एप्लीकेशन अगर हमें देखना हो तो फॉर द हाई पावर सिग्नल्स, फॉर द रेक्टिफाइंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपली वी कैन यूज द Schottky बैरियर डायोड, जो कि जिसका स्ट्रक्चर जो है वो मेटल और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को कंबाइंड करके मिलता है. वहां हम कोई पी टाइप का सेमीकंडक्टर्स नहीं यूज करते हैं. In the case of N type, we can use P type. But dear students, जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो तो that device is assumed to be good. In case of कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो, that's why we select N type semiconductor. और मेटल का कॉन्टैक्ट जिसकी वजह से अगर हमें स्विच की तरह, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें डायोड को लेके 2-3 और एप्लीकेशन पता लग जाते हैं. एक डायोड कैन ऑल्सो यूज्ड एज ए स्विच. डायोड कैन ऑल्सो यूज्ड इन द रेक्टिफायर सर्किट्स. मींस इज द डायोड जो कि रिस्पॉन्सिबल है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो उसका एक ये मेन पार्ट है. तो इससे हमें 2-3 और डायोड्स के एप्लीकेशन मिल जाते हैं. और अमंग दैट अगर हमें Schottky डायोड मिलता है, दैट मीन्स कि हम उसको लो सिग्नल के साथ हाई सिग्नल्स पे भी ऑपरेट कर सकते हैं. So these are the basic applications for Schottky barrier diode. I hope what I have taught to you that you come to understand, and if you have any doubt regarding the terms या any of the things which I have told to you, you can ask me without any hesitation. So that is all for today. Thank you so much. Hope you will take care of yourself. Thank you, students.